last time we have completed different type of bonding, right? Yes, sir. ईसा क्या हो गया था बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार अल्लाह का शुक्र है। देर से उठे थे हैं? जी सर, वो अलार्म मिस हो गया था बस। चलो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई भी मसला हो, कभी ज्वाइन ना कर सक रहे हो ना तो मैसेज कर दिया करो। ओके सर। अच्छा जी, केमिकल बॉन्डिंग। ईसा, वी हैव completed dative bonding, right? यस सर। So we have few questions for dative bonding. Show dative bonding in AlCl3. Show dative bonding in AlCl3 or Al2Cl6. Topic is a revision of dative bonding. Topic is revision of dative bonding. Topic is revision of dative bonding. Isa, what is dative bonding? I think it is when an atom gives electrons to another atom, which is electron deficient. Exactly. So two elements are required, right? One which is electron deficient, second which is electron enriched. So electron enriched species give electron to electron deficient atom. This is called this is called dative bonding. Ibrahim, do you know something about the dative bonding? No, sir. Dative bonding is a kind of bonding in which two electrons are shared. Electrons are shared by one species to bond. In which electrons are shared by one species. So one electrons are shared by single species. Yes, Ibrahim. Isa, can you give some example of compounds which show dative bonding? AlCl3. Okay, and So isn't it basically any compound which has like a lone pair? yes, for example, ammonium NH4 positive. NH4 can form dative bonding. NH4 form dative bonding. NH4 can form dative bonding. Now show dative bonding in AlCl, Al2Cl6. Now Al2Cl6. Now this is aluminum. This is chlorine. This is chlorine. This is chlorine. Now we have another element, aluminum, chlorine,
chlorine, chlorine. Now you can see that central atom, Ibrahim, this nitrogen is electron deficient. This aluminium is electron deficient. This aluminium is electron deficient. Octet deficient. इब्राहिम बात समझ आ रही है? ईसा बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. This is octet deficient. Both are octet deficient. And here we have lone pair. So two conditions are fulfilled. It has lone pair. So dative bond is possible. So dative bond is possible. Now this electron is shared to aluminium and chlorine has this electron. So dative bond is formed between chlorine and aluminium. Similarly, this chlorine gave its electron to this aluminium. So such bond is called dative bond. So we have two types of dative bond in it. आपको बात समझ आ रही है? बेटे बात समझ आ रही है? Al2Cl6 has two dative bonds and 6 covalent bonds. Sir, जी बोले. सर आपको कैसे पता कि बस ये जो नीचे वाला क्लोरीन है ये एल्यूमिनियम को देगा और वो ऊपर वाला क्लोरीन दूसरा वाला एल्यूमिनियम को देगा? इसके अलावा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता ना. देखो 1 2 3 4 ऑक्टेट इज कंप्लीट. ओके 1 2 3 4 ऑक्टेट हो गया. 1 2 3 4. इसके बगैर बन नहीं रहा था. ओके सर. बोले बात समझ आती है? इब्राहिम sir. आपको समझ में आना चाहिए. इब्राहिम जी सर आ रही। ऐसी बॉन्डिंग कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्डिंग. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्डिंग. सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर dative bonding, and this is called intramolecular dative bonding. Sir, why does octet have to be 4? Isn't aluminum in group 3? No. Electrons, total electrons, bonds are 4, but octet is completed because 2 4 6 8 electrons. Okay. Now octet deficiency is fulfilled. Here we have 3 covalent bond, 3 covalent bond. Angle is 120 degree. But now the angle is not 120 degree, it's 109.5. And the shape is changed, tetrahedral. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है भाई? Yes sir. Yes, sir. So two conditions, lone pair of electron and electron deficient. हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं. There are two conditions.
We have two types of dative bonding, intramolecular and intermolecular. Now, another example is BeCl2. BeCl2. BeCl2 dative bonding. इब्राहिम, आपको मेरी आवाज आ रही है इब्राहिम? Yes, sir. समझ आ रहा है डेटिव बॉन्ड? जी सर, आ रहा है। ये थोड़ा पुराना है ना, तुम्हें रिकॉर्डिंग देखोगे ना और समझ में आएगा अच्छा. Now BeCl2 dative bonding. अब देखो ये रहा BeCl2. Shape is linear. Angle is 180 degree and shape is linear. Four electrons. Octet deficient. Now BeCl2. Now BeCl2. Now another BeCl2. Another BeCl2. So here we have lone pair. Dative bond is formed. Now you can count 8 electrons. 8 electron. So BeCl2 form dative bonding. So the correct structure of BeCl2 is, now look at Be, Be, Pe, Pe. Here we have two bonds, Cl, 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 Cl. So dative bonding is just like this. This is dative bonding. Octet is completed. Octet is completed. Sir, how did you get this final structure? You know that it has giant structure, right? So beryllium BeCl2. This is again BeCl2. This is again BeCl2. This is BeCl2. So it forms dative bonding. So octet is completed. Yes, Now sir. it has But eight electrons. You can draw in any way. okay, You sir. So can this draw in structure any is way. not like necessary, right? No. You can draw like this, or you can draw like this. Okay, sir. This is the revision of dative bonding. Now lecture number 19, lecture number 18. Yesterday we have solved atomic structure past paper. Today lecture number 19. So lecture number 19 is have we completed the shape? Sir, what class did we have yesterday? Did you change the time? Yes, yesterday past paper class. You know that Like, past paper of atomic structure. I will share the recording.
देखो बीच में ऐसा होगा कि मैं Okay, but did you? आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। बीच में ऐसा होगा, देखो जब मेरे पास असल में कराची में छुट्टी थी कल, पाकिस्तान में, तो फिर मैंने उसको यूटिलाइज करा और अच्छा, अचानक पास पेपर की क्लास ले ली, तो वो तो रिकॉर्डेड होगा होगा, okay. वो कोई मसला नहीं। मैं वीक में इस तरह से एक एक क्लास लेता रहूंगा पास पेपर की, ठीक है, कोई परेशानी अच्छा, नहीं आप है। एक हेड्स अप दे दिया करें हाँ फिर। हाँ, मैंने भेजा था। और कल ऐसा हुआ था कि कल मैंने ओ लेवल की क्लास थी, तुम लोगों को मैसेज कर दिया था क्लास का, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हुआ तो वो मैंने फिर डिलीट कर दिया था वहां से। लेकिन पास पेपर की क्लास हुई थी मॉर्निंग में 11 to 1, मैं वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है हमने सर। सिग्मा भी कर लिया था, पाई भी कर लिया था, हमने हाइब्रिडाइजेशन भी पहचानना सीख लिया था, हमने शेप निकालना भी सीख लिया था, हाइब्रिडाइजेशन भी सीख लिया था। नाउ मेटालिक बॉन्डिंग। नाउ थर्ड बॉन्डिंग इज मेटालिक बॉन्डिंग। थर्ड बॉन्डिंग इज metallic bonding. Metallic bonding. Metallic bonding. Metallic bonding. Metallic bonding. Now, what is metallic bonding? The bonding between delocalized electron and positive metal ion. The bonding means electrostatic attraction. Bonding means electrostatic attraction between delocalized electron and positive metal ion. Metal ion. Let's suppose these metals. Consider this metal ion. Let's suppose this is sodium.
This is sodium. Sodium has +1 charge. So sodium has one delocalized electron. That's why positive charge is developed on sodium. सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, उस पे प्लस चार्ज आ गया. इसी तरह से इफ यू हैव कैल्शियम, now 2 electrons are delocalized. So 2 electrons are delocalized. 2 electrons are delocalized. Aluminium has 3 delocalized electrons. बताइए तीनों में से किसमें ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा होगी? ये कहलाएगा सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. बोले किसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होगी? आपको मेरी आवाज आ रही है? एल्युमिनियम में ज्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अट्रैक्शन है, इसी को तो मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं. न्यूक्लियस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, इसी का नाम तो मेटालिक बॉन्डिंग है भाई. दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस. This attraction is called metallic bonding. Metallic bonding. बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yeah. चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स. Factors on which strength of metallic bonding depends. There are two factors on which metallic bonding depends. Number one, positive charge. Number two, delocalized electron. Delocalized electron. So metallic bonding is directly proportional to positive charge. Metallic bond strength is directly proportional to positive charge. यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जबरदस्त किस्म की बॉन्डिंग होगी. Similarly, metallic bond strength is directly proportional to delocalized electron. बोले यहां तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए कि क्या गैसियस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? हाइड्रोजन जैसे लेते हैं, हाइड्रोजन ये तो मेटल है ना, मेटल. अगर नॉन मेटल कोई गैस ले लेते तो बताइए क्या उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आयंस मूव करते हैं गैसियस में? बोले I think they do.
गैशियस में आपने कभी देखा कि पॉजिटिव आयन हवा में जा रहा हो? कभी आपने नोट किया गया ऐसा? तो एक DI लिख लीजिएगा। नाइदर ions nor electrons are free to move in gaseous state। ये MCQ में पूछ सकता है कि भाई कौन सी स्टेट इसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ मेटालिक बॉन्ड strength weakens A by lowering temperature, B high temperature, number C by adding water, D none of the above। बोलिए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे वीक होती है? सर आई थिंक बी। हाई टेम्परेचर करेक्ट आंसर। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है। इब्राहिम आप मेरी इस बात समझ रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी सर। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसे आप थोड़ी सी समरी कर देंगे मुझे? मेटालिक बॉन्डिंग की समरी कर देंगे? Okay, sir. Sir, metallic bonding is basically the electrostatic force between the delocalized electron and the positive ions. ठीक And है। the strength of the metallic bond depends on the positive charge and the delocalized electron. So it is directly proportional to both of them. So the positive charge increases and there are more delocalized electrons. So obviously the metallic bond strength will also increase. And there are no free ions or electrons in gaseous state. And metallic bond strength can be weakened by high temperature. वेरी गुड। इब्राहिम can you repeat briefly what is metallic bonding? Sorry, sir. Can you repeat what is metallic bonding and what is the strength of metallic bonding? And what is the? मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने अभी समझा है मेटालिक बॉन्डिंग? So it's a type of bonding which has attraction of force ठीक between है। free moving electrons or ठीक है। delocalized electrons. ठीक है। और शाबाश 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 बोले, शाबाश, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। So that's it. ठीक है, अच्छी कोशिश की आपने। थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना और कुछ अच्छा समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने पोलराइजिंग पावर करा दिया था आपको? Yes, sir.
ठीक है, आइए आपको डेटिव बॉन्डिंग पे वापस लेके जाता हूँ। ये आपने डेटिव बॉन्डिंग की थी। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ डेटिव बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल वाले। ये सब आपने की डेटिव बॉन्डिंग। चलिए एक सवाल है, कार्बन ऑक्सीजन में याद करिएगा, याद रखिएगा इस तरह की डेटिव बॉन्डिंग होती है। कार्बन ऑक्सीजन में इस तरह की बॉन्डिंग होती है। ये स्ट्रक्चर आपने याद रख लेना है। कार्बन नाइट्रोजन में भी इसी तरह की होती है। इसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। ये इंट्रामोलिक्यूलर है। ईसा इब्राहिम में दोबारा समझाऊंगा, अगर समझ नहीं आया तो मुझे बोलना। इंटरमोलिक्यूलर है, विद इन द मॉलिक्यूल है। ये भी इंट्रा है, इंट्रामोलिक्यूलर। ये भी इंट्रा है, इंट्रामोलिक्यूलर। देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएं। बोले ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर 6। 6। अब गिनिएगा मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6। बोले बात समझ आई कि नहीं आई। यस सर। आप देखें पिंक से कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4, 1 2 3 4। आपको आसानी से समझ हो गया, आ गई होगी डेटिव बॉन्डिंग कैसे बनी है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। आइए कार्बन नाइट्रोजन देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 4 5। और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4। 1 2 3 4। आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन याद रखिएगा साइनाइड CN साइनाइड होता है, इसमें एक डेटिव बॉन्ड होता है। ईसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इब्राहिम। यस सर। So बस याद रखना है कि इसमें एक डेटिव बॉन्ड होता है बस। चलिए मेटालिक बॉन्डिंग पे वापस आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इस ईसा देखना रिकॉर्डिंग हो रही है ना। जी सर हो रही। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। वाई
melting point of magnesium. Why melting point of magnesium is higher than सोडियम? पता है मैग्नीशियम का 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे बोले? Why melting point of magnesium is higher than sodium? Sir, due to the higher positive charge of magnesium. इस तरह तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ना, 3 नंबर का सवाल है, क्या 3 पॉइंट लिखेंगे? अच्छा, तो पहला वाला तो it's due to the higher positive charge of magnesium, so the एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहला पहला पॉइंट आपने ऐसा बोला कि मैग्नीशियम हैज 2 delocalized इलेक्ट्रॉन while sodium has 1 delocalized इलेक्ट्रॉन, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी Magnesium has 2 delocalized electron while sodium has 1 delocalized electron. नेक्स्ट पॉइंट बताएं. Yeah, because magnesium has a greater charge. हाँ बोले. I'm मैग्नीशियम saying because अब अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी ना. जी तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मैग्नीशियम हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction with delocalized electron than sodium. तीसरा point, more energy is required to overcome this attraction to melt. More energy is required to overcome this attraction to melt. बोले बात समझ आ रही है? यस सर. चलिए अब एक और क्वेश्चन है. Why melting point of magnesium is lower than beryllium? Is lower than beryllium. बताएं क्यों? बोले क्यों? नॉट श्योर सर, दोनों के सेम चार्ज है. Why melting point of magnesium is lower than beryllium? आपको मैंने 2 फैक्टर बताए थे ना. तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, the two यार factors. साइज नहीं हो रहा, साइज साइज देखिए, साइज चार्ज तो दोनों पे +2 है. आप देखें ना ईसा, यहाँ देखें इनवर्सली रिलेशन है ना, ये देखिए चार्ज, एक तो चार्ज था डायरेक्टली है और एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो क्या साइज नहीं हो सकता? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है?
Yes, sir. चलिए इसका आंसर लिखेंगे 3 पॉइंट के लिए। क्या लिखेंगे ये सब बताएं। फिर मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है तो फिर इट विल हैव लेस चार्ज, राइट? ठीक है, 3 नंबर के लिए बताएं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। हाँ ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हो गया कि मैग्नीशियम विल हैव आई मीन बेरिलियम विल हैव अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ठीक है। तो फिर बेरिलियम विल रिक्वायर मोर एनर्जी देन मैग्नीशियम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नाउ फर्स्ट पॉइंट, magnesium is, yeah, magnesium has magnesium size is bigger than the size of beryllium. Point number 2, magnesium has more shell, more shielding, less attraction, less nuclear attraction. Beryllium has small size, more nuclear attraction, more nuclear attraction. Hence, beryllium has a strong metallic bond than magnesium. More energy is required. More energy is required to overcome this attraction to melt. बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Sir, over here we used nuclear attraction terms. Yes, you can use this term shielding, right? Okay, so if it's about size, then we can use nuclear attraction. Yes, whenever the size is there, you can use the number of shell because it's atom. Beryllium is atom, not compound. Similarly, magnesium is metal element, not a compound. So you can use the word shielding, shell for only metallic bonding. Now, last heading of the chapter. Intermolecular force of attraction. Force of attraction. Intermolecular force of attraction.
Now point number 1. इब्राहिम ईसा, यहाँ तक ये बात समझ आ रही है जितना भी कराया है? जी सर। जी सर। चलिए, अब जो बॉन्डिंग आ रही है वो है इंटरमोलिक्यूलर। Now first point, the bonding which is with the other molecule. The bonding which is with the other molecule is called intermolecular. Is called intermolecular force of attraction. Number 2, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Melting and boiling points. Melting and boiling points depend on intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा भाई. मैंने शुरू में कराया था, इनकी 3 टाइप होती हैं. इनकी 3 टाइप्स होती हैं भाई. इनकी 3 टाइप्स होती हैं. बताइए नंबर 1 क्या बताई थी आपको? सर किसकी टाइप? इंटरमोलिकुलर की 3 टाइप बताई थी ना. एक का नाम होता है वेंडरवॉल. शुरू में कराई थी ना मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में यार. यार रिवीजन नहीं करते आप. ये देखें, मैंने चैप्टर के शुरू में बॉन्डिंग, ये देखें यहाँ मैंने आपको लिखाया था. जब बॉन्डिंग का पढ़ाया था तो इंटर इंट्रा कराया था. क्या मैंने कराया था नहीं कराया था बेटे? सर पता नहीं, देखना पड़ेगा। यार ऐसा क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो भाई. चलिए मैं यहाँ दोबारा करा देता हूँ आपको, ठीक है? तो आपने छोड़ पहले नहीं? देते. अबे पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा. हो सकता है ना कराया हो, लेकिन मैं कराता जरूर हूँ. शायद आप मैं भूल गए तुम्हें बना, होंगे। पता नहीं, हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें सिलेबस के मुताबिक पढ़ा रहा था ना. बाकियों को मैं अपनी तरह पढ़ाता हूँ. तो आओ हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? ओके सर। बिल्कुल दोबारा से पढ़ लेते हैं. टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. इसको बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. क्या बता सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? तो उसमें केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं इसलिए। नहीं यार, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. अगर तुम्हें याद आ जाए ना मैंने करवाया तो बता देना, ठीक है? 2 तरह की बॉन्डिंग होती है. एक कहलाती है इंट्रामोलिक्यूलर
और एक कहलाती है इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। देखो इंट्रामोलिक्यूलर और इंटर में क्या है, ये है विथ अदर मॉलिक्यूल, और इंट्रा है विद इन द मॉलिक्यूल। ईसा, तुम्हारे स्कूल में गेम होते हैं, गेम? जी सर। अगर कॉलेज के अंदर ही टीम के दरमियान मैच हो उसे इंटर कहते हैं या इंट्रा टूर्नामेंट कहते हैं? इंट्रा। इंट्रा विद इन द कॉलेज है, लेकिन विद अदर कॉलेज हो तो उसे क्या कहते हैं? इंटर। इंटर। तो बिल्कुल इसी तरह से होगा। देखो ये देखो, ये देखो, ये रहा पानी, अगर एक पानी को अपने आप से मोहब्बत हो जाए, उससे ये दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर। ये देखो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से मोहब्बत हो गई है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर। अगर आपको आपकी अपनी आंखों से प्यार हो जाए तो उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। आपको अपने दिमाग से मोहब्बत हो जाए उसे कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। लेकिन आपको किसी और के दिमाग की तारीफ करनी पड़ जाए वो कहलाता है इंटरमोलिक्यूलर। ये सब बात समझ आ रही है? अपनी किसी चीज से प्यार हो जाए उसे कहते हैं इंट्रा अट्रैक्शन, लेकिन आपको किसी दूसरे की किसी चीज से प्यार हो जाए उसे कहते हैं इंटर। क्या आपको मेरी बात समझ आई है नहीं आई है? जी सर, समझ आ गई। इब्राहिम, जी सर, समझ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंट्रामोलिक्यूलर की टाइप देखें। इंट्रा की टाइप देखें, 1 2 3 4। बताइए क्या आपको मैंने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा दी है? जी सर, आपने बोले, पढ़ा। जी जी। क्या मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा दी है आपको? जी सर। ठीक हो गया। क्या मैंने आपको डेटिव बॉन्डिंग पढ़ा दी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैंने आपको मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ा दी है? जी। अभी। आज कराई हमने, ठीक है। अब हमने जो स्टार्ट किया ना, वो ये स्टार्ट किया, ये वाला। पहली बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी है वेंडरवॉल, और तीसरी है परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या ये मैंने पहले कराया था? ईसा, क्या ये पहले कराया है? तो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं। याद नहीं आ रहा इसका मतलब मैं नहीं कराया। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उस दिन अटेंड नहीं किया हो और फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा करा दिया ना। अभी आप सिलेबस भी देखेंगे, कोई एक चीज भी आप कहेंगे कि नहीं कराइए, मैं दोबारा कराऊंगा। थैंक यू सर।
चले आगे बढ़ते हैं. Okay, next is now. but आप ये बताइए इन 7 में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कौन सी होती है? Metallic. आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग. Alright. So first bonding is ionic bonding is the strongest bonding out of 7. बताइए सबसे थकी हुई बॉन्डिंग कौन सी होगी आउट ऑफ 7? बोले. So मैं थोड़ा lag हो गया था. Can you repeat the question? I asked about the weakest bonding. Ionic bonding is the strongest, right? So weakest bonding is van der Waal. Okay. Van der Waal is the weakest bonding out of 7. Now next, hydrogen bonding is the strongest. Hydrogen bonding is the strongest intermolecular. Intermolecular hydrogen bonding is the strongest intermolecular bonding. Hydrogen bonding is the strongest intermolecular bonding. Now first bonding is van der Waal. Van der Waal force of attraction. Van der Waal force of attraction. First point, another name is London forces. Another name is London forces. Another name is London forces. London forces. Why London forces? Because लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इन्वेंट किया था. नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन.
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Number 2, another name is instantaneous dipole induced dipole attraction. मैं समझाऊंगा क्यों कहते हैं attraction. Number 3, another name is dispersion forces. Another name is dispersion forces. Dispersion forces. Instantaneous or temporary. Temporary. Dipole induced dipole. Or induced dipole dipole attraction. Another name is temporary or instantaneous induced dipole dipole attraction. Induce आपके आसानी के लिए मैंने चेंज कर दिया. Induced dipole dipole attraction. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. आइए मैं आपको सिखाता हूं कि क्या क्यों कैसे. अच्छी तरह समझिएगा. कि किस तरह से ये इंड्यूस्ड डायपोल होती है. इसको अच्छी तरह समझिएगा इंड्यूस्ड डायपोल किस तरह होती है. देखें ये एक एटम है. ये एक एटम है. इसमें ये न्यूक्लियस होता है. इसको न्यूक्लियस कहते हैं. ये इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ऐसे. तो बताइए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है. बताइए क्या ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए. इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए चारों तरफ हैं बराबर बराबर. बोले तो बराबर तो नहीं. मतलब कहने का ये है कि ये देखें. ओहो मकसद कहने का ये. अब बताएं ये तीनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं गोल में. जी बताएं ये तीनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना. जी जी. तो इसे कहेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. इसे कहेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब ये मॉलिक्यूल घूमता है ना चलता है हवा में तो इसकी शक्ल बिल्कुल ये मटक मटक के चलता है. इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है. देखें ऐसे गोल था ना पहले ये. अब इसका न्यूक्लियस आ जाता है इधर और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इधर. ये वही न्यूक्लियस है. ये वही इलेक्ट्रॉन है.
बताएं क्या ये अब सिमेट्रिकल रहा या एसिमेट्रिकल हो गया है? asymmetrical. एसिमेट्रिकल हो गया। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए उधर छोटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जहां से चले गए वहां स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब आप देखें इस तरह बहुत सारे आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये देखें, देखें ये रहा, इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल, इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल, इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल। तो बताइए क्या इधर माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के दरमियान ये मोहब्बत नहीं हो जाएगी? ये इधर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो जाएगी? दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड वेंडरवॉल। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? So the attraction Yes, with sir. the electron and nucleus. दोबारा रिपीट करना, क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाली जो अट्रैक्शन है। हाँ, ये जाहिर सी बात है, देखो ना स्मॉल डेल्टा चार्ज आ गया इधर, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा? इधर स्मॉल नेगेटिव इधर स्मॉल पॉजिटिव, इधर स्मॉल नेगेटिव इधर स्मॉल पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट तो करेंगे ना ये एक दूसरे को। ओके सर। देखो ना ये रहा माइनस डेल्टा, ये आ गया प्लस डेल्टा, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये आ गया माइनस डेल्टा इसका, ये आ गया इसका प्लस डेल्टा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये। इस मॉलिक्यूल का प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड वेंडरवॉल। उन्हें बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्योंकि क्योंकि ये डिस्पर्स हो जाती है, हर एक को अपनी लपेट में ले लेती है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। और एक मॉलिक्यूल भी घूम गया ना तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव टूट जाएगी, इसीलिए इसका नाम टेम्पररी है। आपको बात समझ आ रही है? देखिए यस मैं सर। आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमा दूं, और इसकी जगह ऐसा कंपाउंड बना दूं जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, न्यूक्लियस इधर आ जाए और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो बताएं ये अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बोले, बताइए ना, वंडरवॉल ब्रेक हो गई नहीं हो गई? जी सर। नो अट्रैक्शन नाउ। ये रिपल्जन है, रिपल्जन, अब ये रिपल्जन है। सर मैंने रिपल्शन क्या था? अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखें ये रिपल्जन है, रिपल्जन, वंडरवॉल ब्रेक, वंडरवॉल ब्रेक, इसलिए इसका नाम टेम्पररी है। बोले बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए अगला है फैक्टर्स ऑन विच लंदन फोर्सेस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच लंदन फोर्सेस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच लंदन फोर्सेस डिपेंड्स।
Two factors. Two factors. Number one, number of electron. Number two, branching. Now number of electron. First factor is number of electron. Number of electrons. So as the number of electron increases, size of atom increases, right? Or as the size of an atom increases, number of electron also increases. Point number two. So as the number of electron increases, attraction between nucleus and electron increases. As electron increases, attraction between electron and nucleus increases. London forces also increases. Now exam question. Now Isa Ibrahim, compare melting point of or boiling point of neon and argon. Yes, The neon has a higher boiling point. this is for 2 marks, right? Can you tell me the bonding between neon and argon? It is not metallic, it is van der Waals, right? तो बताइए नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10. Neon has 10 electrons. और argon? 18. Argon has 18 electron. किसका साइज बड़ा होगा? Argon. Argon has more electron, big size. Argon has more electrons, big size. So which one has strong London forces? The argon. Argon has, correct. So argon has strong London forces. Then neon. Hence, more energy is required. More energy is required
to overcome this attraction to melt. This attraction to melt. बोले बात समझ आई है कि नहीं आई है? निश्चय समझ आ गई। Now second factor is branching. Second factor is branching. Now look at the example. This is CH3, CH2, 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 CH3. क्या आप नाम बता सकते हैं इसका? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? 5 Sir, कार्बन को क्या carbon कहते हैं? makes sense, sir. इसे कहते हैं पेंटेन। Pentane. देखें ये इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट कहलाते हैं। इसका नाम है पेंटेन। पेंटेन ये कहलाते हैं कांटेक्ट पॉइंट्स। कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट्स। more contact points, more van der Waal, more contact point, more van der Waal. चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो है ये। इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल। नाम जरूरी नहीं है इसका याद करना, स्ट्रक्चर देख लें बस। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखिए इसका इसी तरह का स्ट्रक्चर लिया, तो देखिए ये इसके कहलाते कांटेक्ट पॉइंट्स। इधर लिखेंगे लेस कांटेक्ट पॉइंट्स। लो van der Waal या वीक van der Waal। बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. बताइए पेंटेन में ज्यादा ब्रांचिंग है या 2,2 डाइमिथाइल उसमें ज्यादा है? Sir, pentane में। पेंटेन में लेस ब्रांचिंग है, सही है, ब्रांच कम है, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में ज्यादा ब्रांच है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल propane have same number of electron, same number of electrons. Pentane and 2,2 dimethyl propane have same number of electrons.
बताइए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से क्या कहते हैं? ईसा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Isoelectronic, sir, isoelectronic. आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन फिर भी कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेंटेन is greater than 2,2-dimethyl propane. Why? तो आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका, पेंटेन हैज less branching, more contact points, strong van der Waal. या इसका ऐसा करके लिखेंगे 2,2-dimethyl propane has more branching, less contact points, weaker van der Waal. यार बोले बात समझ आ गई नहीं आई है? Yes, sir. क्या बात समझ आई, समझाएं जरा. सर बेसिकली के वंडरवॉल में जो ब्रांचिंग, अगर ज्यादा जी ब्रांचिंग बोले. तो लेस कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे, एंड इफ देयर आर लेस कांटेक्ट पॉइंट्स तो फिर द वंडरवॉल फोर्सेस आर वीक. बिल्कुल सही कहा आपने. तो इसका मतलब ये हुआ कि लंदन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन के, और लंदन फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के. ऐसे ही है कि नहीं है? यस सर. चलिए यहीं तक रखते हैं, अगला जो टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे. ईसा कल कितने बजे तक की स्टार्ट करनी है? सर 3:30 करें. 3:30 कर लेते हैं, ठीक है. परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन. आपको कोई बात पूछनी है जाइना? No, sir, it's pretty much clear. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. चलो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे और फिर पास पेपर करेंगे, दोबारा करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के और बॉन्डिंग के. चलो बेटा, अल्लाह हाफिज. Love this. लास्ट सर. अल्लाह हाफिज.